Good morning, dear friends. So today our topic is RPV. R means ratio, P is proportion, and V is variation. So ratio, proportion, and variation. No. This is the topic we'll discuss today. So ratio, proportion, and variation. So we'll discuss one by one. What is ratio, what is proportion, and what is variation. Ratio. It is comparison of two similar things, A and B. So we write the ratio A is to B. That means fraction A upon B, where B should not be equal to 0. So comparison of two similar things. Similar things means they should have same physical units. Then we can compare them, we can divide them. So the fraction is A upon B, or you can write as A is to B. So double dot stands for the ratio A is to B. That means A divided by B, where denominator B cannot be equal to 0. So a ratio has two terms, A and B. A is called antecedent of the ratio and B is called consequent. The term in numerator is called antecedent and the term in the denominator is called consequent of the ratio, like 2 by 3 or 2 is to 3. So 2 is the antecedent here and 3 is the consequent. So as told you, the ratio is comparison of two similar things. Like if ratio is like this, 4 kg is to 400 gram. 4 kg is to 400 gram. So unit has to be same. So first we will convert kg into gram. So 1 kg means 1000 gram. So 4000 upon 400, or the ratio will be 10 is to 1. 4 kg and 400 gram. Similarly, we can have this ratio of time. 2 days is to 8 hours. So first you have to convert days into hours. 1 day means 24 hours. So 2 day means 48 hours is to 8 hours. Unit should be same. The final ratio will be 6 is to 1. But if I ask you to find this ratio 20 kg and 30 meter, so it will not be 2 is to 3, because 20 kg is unit of mass and meter it is unit of length. So they are not similar things, they have different units. So this is not a ratio, it is not defined.
So now I hope the definition of ratio is clear to you. Suppose we have the ratio 2:3 or 2/3. If I multiply both the terms by non-zero number, suppose I multiply by 2, 4 by 6, both the ratios are equal. I can multiply by 10, 20 by 30, or we can multiply both terms by 100, 200 by 300, and so on. So all the ratios are equal, but you can see 2/3 has no common factor other than 1. All other ratios have common factors. So this 2/3 is called the basic ratio. And all these ratios which we have generated by multiplying both the terms by same number, तो इन रेशियोज को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशियोज. तो बेसिक रेशियो तो आपका एक ही होगा, उससे अपन जनरेट कर सकते हैं इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशियोज by multiplying by a constant number, say k, 2k upon 3k, where k should not be 0. Or if general term with the ratio is a by b, I can write as ak upon bk, where k is some non-zero constant. So this is very important method. Any ratio a by b we can write as ak upon bk. That means we can convert the ratio a by b into ak and bk, where k is non-zero constant. So this method is called k method. Very important method, k method. So any basic ratio a by b I can write as ak upon bk, where k is not equal to 0. So this k method is applied for solving question based on ratios. कैसे अप्लाई करेंगे? तो विल सी सम एग्जांपल्स. इस k मेथड को कैसे अप्लाई करना है आपको. सपोज सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड 20,000 rupees into 2 parts of ratio 2:3. जैसे आपको 20,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दो पर्सन्स के बीच में, और उनकी जो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रेशियो शुड बी 2:3. तो अब इसमें एक मेथड कैसे अप्लाई करेंगे? टोटल अमाउंट इज 20,000 और वी वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू रेशियो 2:3. तो 2:3 आई विल राइट एस 2k and 3k. ठीक है, आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल अमाउंट नाउ विल बी 2k plus 3k इज इक्वल टू 20,000 और 5k इज इक्वल टू 20,000, जिससे आपको k मिल जाएगा कितना? 4,000. So the 2k part will be 2 into 4,000, that is 8,000 rupees, and second part जो 3k है
12,000 रुपीज़। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3 के रेशियो में। किसको? टोटल अमाउंट कितना था अपना? 20,000। तो वन पार्ट इज 8,000, अदर पार्ट इज 12,000। 20,000 has been distributed now into two parts, 8,000 rupees and 12,000 rupees with the help of K method. You can see this ratio is 2:3. We will take one more example for understanding this K method. Suppose salary of two persons A and B are in the ratio 4:5. ठीक है, बेसिक सैलरी का रेशियो क्या है? 4:5. After 1 year, A gets 10% increase in the salary and B gets 20% increase. A की सैलरी 10% बढ़ गई, जबकि B की सैलरी 20% बढ़ गई. Now what will be the new ratio? This 4/5, 4:5 will change. अब नया रेशियो क्या होगा? तो अगेन I will take help of K method. So I will say A:B was 4K and 5K. इसका 10% ऐड कर दो और 5K में कितना ऐड करेंगे? 20%. ठीक है, तो न्यू सैलरी ऑफ A विल बी 4K plus 10% of K, 4K. That means 4K plus 0.4K, 4.4K. और 5K में 20% ऐड करेंगे, तो 20% ऑफ 5K इज 1K और K. तो 5K plus K 6K. तो न्यू सैलरी का रेशियो अब क्या आ गया आपका? 4.4K अपॉन 6K. K कैंसिल हो जाएगा, वी कैन मल्टीप्लाई बाई 10. तो 44/60 to remove the decimal. अब इसमें 4 कॉमन फैक्टर है तो वो आप कैंसिल कर दीजिए. तो 11:15. तो न्यू रेशियो ऑफ A एंड B सैलरी विल बी 11:15. तो नाउ आई होप दिस K मेथड एप्लीकेशन इज क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जब भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. Moving on further, types of ratios. यदि अपना बेसिक रेशियो A:B है, where B is not equal to 0. Inverse ratio you invert the terms, तो B:A. जैसे अगर बेसिक रेशियो मान लो आपका 2:3 था, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 3:2. उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में. यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट प्रोडक्ट एज 1. तो दिस इज इनवर्स रेशियो. सेकेंड टाइप इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो मतलब आप दोनों टर्म को स्क्वायर करेंगे. A² इज टू B². तो ये डुप्लीकेट रेशियो है A:B का. जैसे 2:3, तो डुप्लीकेट रेशियो विल बी 2² 4
is to 3 square 9. So 4:9 is the duplicate ratio of 2:3. Third type is called triplicate ratio. तो डुप्लीकेट में हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था दोनों टर्म को. यहाँ पे आपको दोनों टर्म को क्यूब करना है, पावर 3. ए क्यूब इज टू बी क्यूब. तो अगर बेसिक रेशियो आपका 2/3 है तो 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27. तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बन जाएगा, 8:27, 2:3. तो बेसिक टाइप ऑफ रेशियो जो डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ. फोर्थ टाइप इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्या था, स्क्वायर. तो सब डुप्लीकेट क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट. दोनों टर्म का स्क्वायर रूट लेना है. जैसे 2:3 का सब डुप्लीकेट क्या होगा, √2 तो सब मतलब रूट, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द टर्म्स. सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब ट्रिप्लीकेट क्या था, क्यूब. तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी. जैसे सपोज अपना रेशियो है 64:343. अगर ये बेसिक रेशियो है तो इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7. तो 4:7. नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो. जैसे आपने आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड, कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 elements. जैसे वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कंपाउंड रेशियो जो मैथ्स में है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 or more ratios. Means at least 2 ratios should be there, or we can have more than 2, n number of ratios. तो जितने भी रेशियो गिवन है आपको क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना और सिंप्लीफाई करना. लाइक a/b, सेकेंड रेशियो c/d, e/f एंड सो ऑन, सपोज अप टू m/n. तो सिंपली मल्टीप्लाई ऑल द रेशियोज एंड सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो लास्ट रेशियो बचेगा x/y. So this will be the compound ratio of all the ratios. फाइनल रेशियो क्या बचा आपका, x/y. क्योंकि सिंप्लीफाई कर दिया तो एक टर्म बचेगी न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में. तो x/y इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ ऑल द रेशियोज गिवन. सेवेंथ टाइप इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रेशियो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअस रेशियो. यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 रेशियोज विल बी इन्वॉल्व. लाइक वन रेशियो इज a:b और सेकेंड रेशियो b:c. तो इनका कंटिन्यूअस रेशियो क्या बन जाएगा, a:b:c. मतलब इसमें अब 3 टर्म आ गई. तो कंटिन्यूअस रेशियो में एटलीस्ट 3 टर्म्स विल बी देयर. तो आप ध्यान से देखिए, a:b में जो कॉन्सिक्वेंट और डिनोमिनेटर है b है, और b:c में
एंटीसीडेंट या न्यूमरेटर है वो सेम है बी, मीन्स ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर, सेकंड रेशियो का न्यूमरेटर. देन वी कैन हैव द कंटिन्यूस रेशियो a is to b is to c. फॉर एग्जाम्पल एक रेशियो मान लो 2:3 है, दूसरा रेशियो 3:4 है, तो इन दोनों का कंटिन्यूस रेशियो बन जाएगा 2:3:4. This very clear to you because this 3 was same here, so we have made the continuous ratio 2:3:4. But suppose if these terms are not equal, one ratio is 2:3, other ratio is 4:5. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है फर्स्ट रेशियो में, सेकंड रेशियो का न्यूमरेटर 4 है, दोनों इक्वल नहीं है. तो नाउ हाउ टू मेक दिस कंटिन्यूस रेशियो, कैसे बनेगा? तो उसके लिए इसको पहले दोनों टर्म को इक्वल करना पड़ेगा. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू फ्रैक्शंस और रेशियोज कैन बी कन्वर्टेड बाय मल्टीप्लाइंग k बाय बोथ साइड. तो 3 और 4 को अगर इक्वल करना है आपको, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. 3 और 4 का LCM कितना आ जाएगा? 3 × 4 12. मीन्स आई कैन कन्वर्ट बोथ दिस नंबर इनटू 12. कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर 3 है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 4. 3 × 4 12. लेकिन मल्टीप्लाई सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, AK अपॉन BK. तो आई विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रेशियो बाय 4. तो आपका क्या बन जाएगा? 8:12. एंड आई विल मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स बाय 4. तो अब ये कन्वर्ट हो गया 8:12. सेकेंड में न्यूमरेटर 4 था, उसको 12 करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स बाय 3. तो 12:15. ये सेकेंड रेशियो कन्वर्ट हो गया 12:15. अब आप देखिए 12 ये इक्वल आ गया दोनों, तो कंटिन्यूस रेशियो क्या बन जाएगा? 8 12 15. So this is how you have to make continuous ratio by taking the LCM of denominator of first ratio and numerator of second ratio. Next concept is ratio of fractions. अभी तक जब हम रेशियो ले रहे थे सब टर्म्स उसमें क्या होल नंबर थी और नेचुरल नंबर्स. बट नाउ इफ द रेशियोज आर फ्रैक्शंस आर, वी हैव टू टेक फ्रैक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, लाइक 1/2:1/3:1/4. ठीक है, इनको आपको रेशियो कैलकुलेट करना है. तीनों फ्रैक्शन है, 1/2 1/3 1/4. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो डिनोमिनेटर है 2 3 4, उसका LCM ले लीजिए. तो 2 × 3 × 2 3 and 4 का LCM. तो वी कैन सी 3 × 4 12. इनका LCM कितना आ गया? 12. किसका? डिनोमिनेटर्स का. दिस इज द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स 2 3 and 4 12. तो फर्स्ट रेशियो क्या बन जाएगा? 6/12. सेकेंड रेशियो 4/12. थर्ड रेशियो 3/12. और 12 कॉमन डिनोमिनेटर वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनल रेशियो आपका कन्वर्ट क्या हो गया? 6:4:3. तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया. फ्रैक्शन क्या थे? 1/2 1/3 1/4. तो फाइनल रेशियो उनका क्या हो गया? 6:4:3. नाउ यू कैन अप्लाई K मेथड इन दिस फाइनल रेशियो ओनली.
यू कैन नॉट अप्लाई के मेथड इनटू रेशियो ऑफ फ्रैक्शंस डायरेक्टली, तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको इंटीजर्स में या होल नंबर्स में। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 1/2:1/3:1/5 तीनों फ्रैक्शन है, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 × 3 × 5 30, तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा 30/2 15, 30/3 10, 30/5 6, तो ये फाइनल रेशियो 15:10:6। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है अगर रेशियो आपके फ्रैक्शंस में दिए हैं। Now moving on to next topic we have today, proportion. What is proportion? So definition of proportion is equality of two ratios is called proportion. जब दो रेशियो एग्जैक्टली इक्वल हैं then we say they are in proportion. So proportion is equality of two ratios is proportion. Let's suppose one ratio is 4:7, other ratio is 28:49. So now we can see 4/7 or 28/49 both are equal, because 28/49 again if you simplify it will become 4/7. So they are in proportion. तो proportion का सिंबल क्या है, 4 dots. रेशियो का सिंबल क्या है, 2 dots. But when we are putting 4 dots, this is the symbol for proportion. मतलब लेफ्ट हैंड रेशियो और राइट हैंड रेशियो एग्जैक्टली इक्वल है, दे आर इन proportion. So you can see 4 × 49 is equal to 7 × 28 is equal to 196. So ratio 4:7 and 28:49 in proportion. So this is proportion. Now you see, if we generally define this proportion, so it will have 4 terms: A:B, C:D. That means A/B is equal to C/D, और A × D is equal to B × C. अब आप देखिए जो टर्म A और D है वो कहाँ पे आ रही, कॉर्नर में और एक्सट्रीम पोजीशन में, तो इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स. और जो टर्म आ रही है बीच में B एंड C, तो उनको बोलते हैं मीन्स. So for any proportion, the product of extremes is equal to product of means. A × D is equal to B × C. So this is property of proportion. Because A/B ratio is equal to C/D ratio. So AD is equal to BC. One more way of defining proportion is, it has 4 terms. तो एक्सट्रीम और मीन की जगह we can define like this: first proportion, second,
third and fourth. So फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ए बी सी डी उसी ऑर्डर में. तो सपोज there is a question, what is fourth proportion of 1 2 3? This four term is question mark, we have to find this 1 2 3 question mark, fourth proportion निकालना. So by definition of proportion, the ratio of first two terms should be equal to ratio of last two terms. So 1 by 2 should be equal to 3 upon, suppose we say fourth proportion is D. So D is equal to 6. So answer is 6. Fourth proportion is 6. You can see 1 2 3 6. So fourth term has to be 6. Like in the ratio we have studied continuous ratio. So here we can have continuous proportion. What is continuous proportion? Here also the B term will be same. A is to B will be same as B is to C. That means the middle term B is same. So A by B is equal to B by C, or B square is equal to AC, or B is equal to root AC. So this B term is called mean proportion. Mean proportion of A and C is B, because B square is equal to AC and B is under root of AC. So B is called the mean proportion of A and C. कैसे फाइंड करना है? A और C को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए. जैसे सपोज वी हैव टू फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 81 and 121. So suppose it is B under root of 81 into 121. 81 is 9 square, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9. 121 is 11 square, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11. तो B will be equal to 9 into 11 or 99. तो 99 is the mean proportion of 81 and 121. Is it clear? That means what is the proportion? 81 is to 99 is same as 99 is to 121. So this 99 is the mean proportion of 81 and 121. Now we'll discuss some operations on proportion, basic operations. ये आपने स्कूल लेवल में भी स्टडी किए होंगे. Suppose the basic ratio is, or the proportion is A by B is equal to C by D. That means A by B is equal to C by D. The first operation is called invertendo. मतलब दोनों रेशियो को इन्वर्ट कर दो. B by A will be equal to D by C. यदि A by B is equal to C by D है तो उसका जो इन्वर्ट होगा, दोनों रेशियो को इन्वर्स करेंगे, then also it will be equal, तो B by A equal to D by C. ये जो ऑपरेशन है इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो. दोनों रेशियो को इन्वर्ट करती है.
सेकेंड रेशियो इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेट टर्म चेंज हो जाएगी। तो ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। ये बी यहाँ चला गया और सी नीचे आ गया, ऑल्टरनेट टर्म्स आर चेंज्ड। तो ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, ऑल्टरनेंडो ऑपरेशन। Now if I add 1 to both side, +1 दोनों साइड कर दिया अगर, तो भी इक्वल होगा। That means a plus b upon b is equal to c plus d by d. I have added 1 to both sides of the proportion. तो इसको ऑपरेशन कौन सा हो गया, ये कंपोनेंडो। थर्ड ऑपरेशन इज कंपोनेंडो। a plus b upon b is equal to c plus d upon d, कंपोनेंडो ऑपरेशन। Similarly, we can have this operation by subtracting 1 from both sides. तो ये क्या हो जाएगा, a minus b upon b is equal to c minus d upon d. So this is the fourth operation. Dividendo means decreasing by 1 both sides. डिविडेंडो ऑपरेशन। कंपोनेंडो में +1 किया था, डिविडेंडो में आपको दोनों साइड -1 करना है। तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। अब नेक्स्ट में अगर दोनों को कंबाइन कर दूं ऑपरेशन को, then we will have a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। तो ये जो कंबाइंड ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑपरेशन। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंबाइंड ऑपरेशन। So this is very important operation, componendo and dividendo। a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे सपोज सिंपल क्वेश्चन, if x plus y upon x minus y is equal to 5/3, what is the ratio x by y? So we can see left side x plus y upon x minus y, so right side also we can apply this operation, componendo and dividendo। 5 plus 3 upon 5 minus 3, that means 8/2 or 4/1 or equal to 4। So directly we have got the ratio as 4:1 or 4 x by y ratio। तो यहाँ पर ने कोई इक्वेशन बनाकर सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई किया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वन मोर एग्जांपल वी विल टेक। if a cube plus b cube upon a cube minus b cube is equal to 133 upon 117, what is the ratio a by b? ठीक है, इक्वेशन क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 133 अपॉन 117। तो रेशियो किसका फाइंड करना है, a और b का। Then how to apply this componendo and dividendo? अब देखिए इसमें जो इक्वेशन में a क्यूब प्लस b क्यूब दिया है और नीचे a क्यूब माइनस b क्यूब दिया है,
तो पहले रेशियो किसका आएगा, ए क्यूब बाई बी क्यूब का रेशियो आएगा बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो 133 प्लस 117 अपॉन 133 माइनस 117 है ना, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट फॉर्म CND। ठीक है, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 133 प्लस 117 अपॉन 133 माइनस 117। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 250 अपॉन 16। अब ये तो किसी का रेशियो नहीं है, क्यूब नहीं है 250 और 60, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 125 अपॉन 8। तो 125 किसका क्यूब है, 5 का। 8 किसका क्यूब है, 2 का। दैट मीन्स ए क्यूब बाई बी क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। अब दोनों साइड का आप क्यूब रूट ले लीजिए, तो ए इज टू बी रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2। तो अब आपको क्लियर होगा कि कैसे अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दिस विदाउट फॉर्मिंग एनी इक्वेशन। वी हैव फाइंड द रेशियो एज 5:2। जो लेफ्ट साइड में क्यूब था तो राइट साइड में भी क्यूब ही आना चाहिए, देन ओनली यू कैन कंपेयर। Now note down one important property of proportion. If so many ratios are in proportion, say A by B is equal to C by D is equal to E by F and so on, M by N is equal to say R. R is the basic ratio. ये सारे रेशियो इक्वल हैं, मीन्स ऑल आर इन proportion. A by B, C by D, E by F and so on to M by N. Then what I can do? I will add all the numerators A plus C plus E up to M and add all the denominators. Denominator क्या थे, B, D, F up to N. तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये जो रेशियो है दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू द बेसिक रेशियो R। जो इंडिविजुअल रेशियोज जिसके इक्वल थे, तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर, वो रेशियो भी सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रपोर्शन की। तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल टू फर्दर क्लेरिफाई दिस प्रॉपर्टी। जैसे आप देखिए 1/2, 2/4 और 3/6, तीनों रेशियो सेम है। तो मैं इंडिविजुअली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देता हूँ और नीचे डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देता हूँ। तो 1 + 2 + 3 6 अपॉन 2 + 4 + 6 12। So 6/12 is again 1/2। जो आपका बेसिक रेशियो था 1/2 वो सेम ही है, मैंने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दिया, तो वो रेशियो भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बेस पे एक बार कैंपस में भी क्वेश्चन आ चुका है। सपोज A B C 3 नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स, सच दैट A अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस C इज इक्वल टू C अपॉन A प्लस B, सपोज इक्वल टू K। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K इज सम कांस्टेंट। तो आपको रेशियो क्या नहीं है, A अपॉन B प्लस C इक्वल टू B अपॉन A प्लस C इज इक्वल टू C अपॉन A प्लस B इक्वल टू K। So we have to find the value of K. A, B, C are सब
पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब आप देखिए इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सो आई विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल हैं। ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू के। So k will also be equal to, if I add all the numerators a plus b plus c, add all the denominator b plus c plus a plus c plus a plus b। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे आप देखिए b 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लूँगा मैं, 2 इंटू ना, नीचे क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन निकल लिया बाहर, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस a b c आर पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स, सो वी कैन कैंसिल आउट। सो फाइनल रेशियो क्या आ गया, 1/2। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ k इज 1/2। So simple, by applying the property only we have found the value of k as 1/2। So this is how we have to apply that property in questions like this. Third topic for today was variation. Now variation can be of two types, direct and inverse। ठीक है, दो टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, x is directly varying with variable y, so x upon y is equal to some constant k is called the constant of variation। That means x1 upon y1 equal to x2 by y2। सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट होता है दोनों वेरिएबल का, x upon y is equal to constant। Example we can take out direct variation, cost of items will be directly varying with quantity of items। जैसे 1 kg एप्पल cost 80 rupees, so 2 kg will cost 160 rupees, 3 kg will cost 240 rupees and so on। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ेगी। सेकेंड इज इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज वेरिंग विथ 1/y, उल्टा इनवर्स। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है इनवर्स वेरिएशन का, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू डू ए वर्क एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, अब आदमी अगर लेबर बढ़ गया
तो डेज कम हो जाएंगे, लेबर कम हो गया तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसी वर्क कंप्लीट करने में। तो मैन एंड डेज इनवर्स रेशियोज। तो डायरेक्ट रेशियो में क्या होगा आपका, अगर एक वेरिएबल, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक्स विल इंक्रीज सो वाई विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में उल्टा हो जाएगा, एक एक्स विल इंक्रीज एंड वाई विल डिक्रीज अकॉर्डिंगली। If x will decrease, y will increase. Now we can have both the variations in a single equation also. Suppose we take the formula of speed. What is speed? Distance and time का ratio है, distance upon time. And what is speed? Distance upon time. तो यहाँ आप देखो, आप दोनों वेरिएशन आपको एक ही इक्वेशन में मिल जाएंगे। डिस्टेंस और स्पीड में क्या वेरिएशन है, डायरेक्ट। क्योंकि आपकी अगर कार की स्पीड बढ़ रही है तो विल कवर मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम। और टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन है, इनवर्स। यदि आपकी कार की स्पीड या बाइक की स्पीड कम हो गई तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा टू रीच योर डेस्टिनेशन, और स्पीड आपने इंक्रीज कर दी तो कम टाइम लगेगा। तो टाइम और स्पीड में जो वेरिएशन है दैट इज इनवर्स, और डिस्टेंस और स्पीड में इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। So now I hope the theoretical concepts are clear to you for ratio, proportion and variation. You can practice further from your textbook or from the online portal. Still, if you have any doubts, we can discuss in the doubt session. Thank you.